Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. इस वक्त हम खड़े हैं एक गांव में जिसका नाम है राघोजीवाड़ी। राघोजीवाड़ी उस्मानाबाद से थोड़ी ही दूर ये एक छोटा सा गांव है और यहाँ आप आसपास देख सकते हैं, यहाँ सब किसान बसते हैं। ये किसानों का गांव है और इस गांव में ऐसा है कि इस पहली और दूसरी लहर के दौरान जो लॉकडाउन लगा, इस लॉकडाउन ने बहुत सारे किसानों की जान ली है। Many farmers over here have committed suicide as they were unable to bear the loss which had occurred to them during the lockdowns. The family on the left you see, नाम क्या आपका? रोहित। 16-year-old Rohit Chore. He lost his father. Rohit's father was a farmer and he committed suicide because he could not bear the expenses. Rohit's mother was ailing. She had kidney ailment, and Rohit's father had already spent 10 to 12 lakhs taking loan from here and there, mortgaging their farms. But he lost his wife, and after his wife's death, he committed suicide by hanging. Now Rohit, who was in school at that time, has stopped his education. He has stopped going to school, and now he has started working. He does runs small errands for various people. Sometimes he works in shop, sometimes in farm. Whatever small job he gets, he does that for the survival. So let's talk to him. रोहित, आपके यहाँ आइए। हाँ रोहित, क्या हुआ था आपके बाबा के साथ? हमारे बाबा के साथ बोलिए। सांग मराठीमध्ये सांग। कर्ज झालं, आई वारलेली, ते आईच्या किडन्या खराब झाल्या त्यामुळं कर्ज झालं, त्यामुळं त्यांनी सुसाईड केलं. He says mother was not well. She had died due to an illness, and his father had gone into depression as there was a huge loan on his head. He couldn't repay the loan, and he too slipped into depression, and because of that he committed suicide. रोहित, तुम्ही कुठे होते जेव्हा बाबांनी सुसाईड केलं होतं? तुम्ही दुकानावर काय काम करता तुम्ही? मसाल्याच्या दुकानात कामाला गेलतो. आणि आता घरात कोण कोण आहे रोहित? आजी मी आजोबा. अच्छा, आजी आणि आजोबा कुठे आहेत? आजीला कामाला गेली ना, आजोबाचा लकवा झालेला. अच्छा. So his grandfather, he is paralyzed. He is currently inside his house. Grandmother also does some household works. She has not yet returned from work. So grandmother and Rohit, they both are the active earning members of their family right now. Rohit, शाळा का सोडली तू? तर घरी कामाला कोण नव्हतं, घरचं भागवण्यासाठी सोडून दिली. शाळेतला खर्च होणार झाला त्यामुळे. Okay. He has left his school, he says, because he was unable to pay his school fees after his father's death. So he started working, and there's no one to look after his grandparents. So that's why he decided to quit school and has now started working. रोहित, जेव्हा बाबांनी आत्महत्या केली कुठे होता तू? मी कामाला गेलतो उस्मान. कामला कसं काढलं तुला त्यावेळी? मी कामाला आल्यावर परत इथं घरी आल्यावर झालं ते. ओके. रोहित, तुझी बहीण आहे इथे? लग्न झाले तिचे. कसं लग्न केलं, कशा पद्धतीने केलं? मावशी चुलते त्यांनी करून दिले. Okay, Rohit has an elder sister who got married some 6 months back, and it was their relatives who had pooled in money and helped her get married. मावशी, तुम्ही सांगा, घरची परिस्थिती काय आहे आता? काय नाही, बहिणीच्या किडन्या फेल गेल्या, 10 लाख रुपये कर्ज झालं. मेहण्यानं बी आत्महत्या केला, टेन्शन कर्ज झालं म्हणून. मग मुलीचं लग्न मी करून दिलं. ओके. तुम्ही इथेच राहते ह्याच्या बरोबर? मी इथंच राहते. Okay, this is Rohit's aunt who has started staying with Rohit since the day his father committed suicide. She's saying there was a lot of loan, and due to the lockdown, he couldn't sell his crops. He was facing a lot of hardship, and that's why he committed suicide. मावशी, लॉकडाऊन काळात काय परिस्थिती होती? काय कामं लागत नव्हती, कर्ज झालेलं ही होतं. ह्यानं शाळा सोडून दिली, कामाला जायचा, दुकानं बंद झाल्यावर मिस्त्रीच्या हाताखाली चालला. परिस्थिती होती म्हणून शाळा बी त्यानं सोडून दिली शाळा.
आणि आता लॉकडाऊनच्या काळात काय परिस्थिती, आता कामं भेटतात तुम्हाला? कामं कुठली भेटत नाहीत, सगळं बंदच आहे आणि कुठली कामं भेटते ते. Saying due to the lockdown, there was no job, there was no work, and they actually struggled for even one-time meal. So that is what pushed her brother-in-law into depression, due to which he committed suicide. Same story what Rohit had said earlier. That's why he left school. There was no money, and even there was no one to work in the farms also now. मावशी, शेतं जे आहेत तुमच्या मिळवण्याची, आता काय त्याची काय कंडिशन आहे? काय भाड्यानं लावताय, पाणी नाही, हलका हाय शेत, दगडाचं हाय, काय पिकत नाही, काय नाही. किती शेतं आहेत? किती 2-3 एकर आहे, 2-2.5 एकरच आहे. So Rohit's father has left 2 acres of land over here, but that land right now is useless because there is no water for irrigation. The fields have dried off, and they're basically they are left of no use right now. So that is why Rohit or anyone else cannot work in the fields, because there's no water. Monsoon over here is bad, and so there are no crops in the field. Sir, this is advocate. Now सांगा आपलं. पाटील शरद. Sharad Patil over here, he's an advocate and he helps people over there. शरद बताइए, यहाँ ये जो गांव है, यहाँ पे फार्मर्स सुसाइड बहुत है, वो किस वजह से? यहाँ खेती अच्छी नहीं है और बारिश भी टाइम पे नहीं पड़ती, और बारिश नहीं होने के बाद इस गांव के खेत करने वाले सब किसान है ना, वो गरीब है, इसलिए सुसाइड ज़्यादा होती है. तो लॉकडाउन की वजह से यहाँ पे क्या कंडीशन है, बताइए. लॉकडाउन की वजह से यहाँ इस गांव में रोज़गार नहीं मिलता, और इस गांव के लोगों को बाहर जाना पड़ता है. बाहर रोज़गार मिलता है, बट लॉकडाउन की वजह से वो जा नहीं सकते, सभी ये उधर बंद है, इसलिए जॉब नहीं मिल रहा है. तो यहाँ कितने लोग रह रहे होंगे इस गाँव में? 1,500 से. अच्छा, 1,500 लोग कम से कम इस गाँव में. और सारे फार्मर्स हैं, सारे किसान हैं? सारे किसान नहीं है, कोई मजदूर है, कोई किसान है, ऐसा है. अच्छा. हाँ, तो बेसिकली सबकी परिस्थिति यहाँ पे ख़राब है, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से कोई बाहर नहीं निकल पा रहा है. हाँ, सबकी परिस्थिति खराब है. अनाज के लिए बाहर जाना पड़ता है, और यही इस गांव में कोई कारखाना नहीं है, इसके लिए बाहर की सिटी उस्मानाबाद नज़दीक है, वहाँ जाना पड़ता है. बट उधर भी बंद रहने के बाद ये अनाज के लिए यहाँ वहाँ जाना पड़ता है. तो किस तरह किसान जो यहाँ पे रहते हैं, रोहित जैसे और भी फैमिलीज रहेंगी, किस तरह वो अपना गुजारा करती हैं? एक टाइम का खाना खा के, और कभी सिर्फ एक टाइम का खाना? हाँ, ऐसा भी रहता है ना. हाँ. हर दिन जॉब नहीं मिलेगी, तब एक टाइम का ही खाना परोसना पड़ेगा. सो यू हैव हर्ड, लोग यहाँ पे सिर्फ एक टाइम का खाना खाते हैं, क्योंकि रोज़ रोज़ उन्हें जॉब नहीं मिलती, उनको काम नहीं मिलते. और यहाँ जो लोग रह रहे हैं, छोटे छोटे काम करके अपना गुजारा कर रहे हैं. कभी वो भूखे पेट सो जाते हैं, कभी अगर उन्हें कोई काम मिला तो फिर वो एटलीस्ट एक टाइम का मील वो अफोर्ड कर सकते हैं. रोहित जैसे ऐसी कई फैमिलीज़ हैं यहाँ पे, जो इस पैंडमिक की वजह से, जो इस लॉकडाउन की वजह से बिखर चुकी है, और अभी भी उन्हें आगे कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही है. अगर कर्ज़ा है तो बैंक वाले परेशान कर रहे हैं, कईयों को तो कर्ज़ा मिल भी नहीं रहा है. ऐसे कई फार्मर्स, कई किसान हैं यहाँ पे जिनको ये तक नहीं पता कि सरकार ने उनके लिए क्या क्या स्कीम मुहैया करवाई है. अगर करवाई भी है तो उसका लाभ उन तक नहीं पहुंच रहा है. ये परिस्थिति है मराठवाड़ा के किसानों की, जो भिन्न प्रकार की परिस्थितियों से जूझ रहे हैं, मुसीबतों से जूझ रहे हैं. विद शिवा देवनाथ, दिस इज़ नाजिया सैयद फ्रॉम मोजो स्टोरी, उस्मानाबाद. It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.